from my Olympiad preparation, I developed problem solving skills, and when I after that when I tried to solve the JEE assignments, it was really easy. मम्मी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पिताजी का रोल एक होता है, मतलब मनी और मॉम। मतलब IOKM के लिए वेदांतु मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर लिया। Hi everyone. You know the world is increasingly driven by mathematics और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझना तो मुश्किल है, उसको मास्टर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आज की लेटेस्ट जो AI आ रही है वहाँ से लेके फिनेंशियल मॉडल, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ मैथमेटिक्स है। आज हमारे साथ दो ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ्स में मतलब जिनका मैथ्स पैशन है और उनने अपने पैशन को फॉलो करते हुए उसको अपना लाइफ का एक गोल बनाया कि दे विल गो वेरी डीप इनटू मैथमेटिक्स, और उनने इसमें एक्सीलेंस शो भी किया है। तो अपने साथ आज है अर्नब जिनने ISI के अंदर रैंक 1 सिक्योर किया है, अपने साथ है शंकरदीप जिनने ISI के एग्जाम के अंदर रैंक 13 सिक्योर किया है, और साथ में JEE एडवांस में 620 रैंक, राइट 21 रैंक। सो ये वो बच्चे हैं जो कि शुरू से क्लियर थे शायद कि हमें मैथ्स में ही अपना फ्यूचर बनाना है, और देखो अब इस मैथ्स की डिफ़िकल्ट जर्नी को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँचे भी है। इनसे समझते हैं कि हाउ हैव दे कम through this journey and what are they thinking ahead. क्यों? So with me is अर्नब and शंकरदीप, और अर्नब के पेरेंट भी हमारे साथ हैं, और अभय सर इनके मेंटर जिनने इस पूरी जर्नी में इन बच्चों को मेंटर करते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। तो पहले तो तुम लोगों से तुम्हारी जर्नी को जानना चाहेंगे। Hi, I am Shankadeep Ghosh. I started my preparation mainly in class 10. Like I got to know about Olympiads in class 10 only, and then from the very first playlist that Avasar took on YouTube, that was named Beyond the Textbook series. From there, I got to know that maths is not like that which we study in schools. It is really different from that. Like it is really abstract. So from there, I decided to do this kind of maths. In class 10th, I studied for IOKM. I could not clear it. Then in 11th, I did JEE plus Olympiads. In weekends, I used to study JEE, and in weekdays, I used to study Olympiads. And and it was a great journey. Also, Vedantu helped a lot to strengthen my basics. And in 11th, I scored 44 in IOKM, 17 in INMO, and in class 12th, I scored 41 in IOKM and 78 in ANEMO and 59 in INMO. I started my preparation from class 7. So in class 7, like as I was talking with my with ma'am, so what we did was my mother saw some like potential in me that she wanted to make me more nurtured for like something for more. So. Beyond school. Yeah, beyond school. So she like my parents they made me admitted to some one coaching. So from there I was I got to know some more maths and something more. So in class 7 and 8 I gave IOKM, like at that time it was PRMO 2019. So I got 5. So that was not like a very good score, but anyway. So then lockdown came in class 9th, and I like online classes began. So in class 10th I gave my second IOKM. I got 28 and the cutoff was 35, so I couldn't clear it. And then there was another thing that in the next IOKM, like there was a part A and a part B, in which I got 20 out of 41. So I couldn't clear the cutoff because it was around 32 or something. So in class 11th, I gave the next IOKM and I cleared it. I got 37. The cutoff was 30. So in INMO, I blundered completely and I got a 5. So that made me think that okay, it's time to maybe shift to ISI preparation.
So at this time I started doing ISI, and side by side some problems for Olympiads, like it's just like a passion or love for maths or something. So in class 12th I gave the IOChem and I qualified. The cutoff was 16 and I got the 26. And then I gave RMO. I got 54. The cutoff was 53. And in INMO I got 68 and the cutoff for 12 was 68. लास्ट वाल फंक्शन के अंदर ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज in two. जो ओलंपियाड के अंदर आया था एंड तो अगेन आई जैसा कि मैंने पहले बोला ही वाज अगेन वन ऑफ द रीजंस वी स्टार्टेड ISI विंग तो इसने को जेई नहीं करना था ही वाज वेरी क्लियर दैट टाइम क्योंकि उस टाइम पे यही था कि मतलब द होल वर्ल्ड वाज रनिंग आफ्टर जेई ओलंपियाड्स जितने भी बच्चे करते थे वो मेनली एक रीज़न होता था कि उनको जेई आसान लगे दैट इज़ वाई दे स्टार्ट विद ओलंपियाड प्रिपरेशन दिस इज द माइंड सेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ही इज़ अमंग्स दो स्टूडेंट्स जिनको पहले दिन से ही क्लैरिटी थी कि मुझे ISI ही करना है मुझे जेई करना ही नहीं है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मैथमेटिक्स एंड जिस तरीके से इनफैक्ट एक बहुत कॉमन एग्ज़ाम होता है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ज्योमेट्री का दैट इज़ शैरिगन ज्योमेट्री रशिया कंडक्ट करती है तो ही इज़ ऑल्सो शैरिगन राउंड टू क्लियर जो कि इंडिया से बहुत कम बच्चे क्लियर कर पाते हैं एंड तो उस टाइम पे भी मतलब वी कॉल्ड हिम ही वाज वन ऑफ आवर स्टूडेंट तो हमने इंटरव्यू लिया था इसका VOS चैनल पे तो उस पर भी इसने बोला था कि सर मतलब ऐसे मतलब ही वॉज वेरी क्लियर एंड दिस इज़ वन ऑफ द रेयर थिंग्स बिकॉज बच्चों को 12th के बाद इनफैक्ट IIT क्लियर होने के बाद भी पता नहीं होता कि कौन सी IIT में जाना कौन सा ब्रांच करना है राइट सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वो रैंक के बेसिस पे अपना ब्रांच डिसाइड करते हैं आजकल यही चल रहा है एंड दिस गाय मतलब प्योर क्लैरिटी कि ISI मैथमेटिक्स थ्रू आउट द लाइफ राइट सो रैंक वन इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बताता हूँ अभी मैंने बताया भी था आपसे इनमो क्वालिफायर्स को इनमो वॉडीज को दे डोंट नीड टू अटेम्प्ट ISI एग्जाम बिकॉज अगर इनमो बॉडी हो यू आर डायरेक्टली इन टू ISI यू डोंट जस्ट हैव टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू तुम्हें ISI एग्जाम लिखने का ज़रूरत नहीं थी बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे ISI से हो ही जाएगा इसमें तो क्या ही बड़ी बात है तो मुझे वो रैंक वन लाने का मौका छोड़ना कि मैं ज़रूर वो करते हैं ना मैंने कहा कर भाई तो पूछना चाहूँगा एक सवाल दोबारा से कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती है या अगर होती है तो काफ़ी पेरेंट्स IIT की तरफ रहते हैं तो आपको कब पता लगा या कैसे आपने डिसाइड किया कि यार अर्नब इज़ वांटिंग टू डू ISI तो मुझे ISI ही करवाना है अर्नब को एंड बाकी जगह प्रेशर नहीं देना या IIT की तरफ नहीं देना वरी ओके विद दैट डिसीजन एक्चुअली हर गार्जियन का मतलब ये मन में रहता है या तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने या मेरा बच्चा इंजीनियर बने ठीक है तो जब शुरू हुआ तो मेरा भी यही सोच था कि बच्चा मेडिकल में कुछ करेगा डॉक्टर बनेगा लेकिन मैंने उसको जो किया था कि हर फील्ड में उसको ऑप्शन दे दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो क्या कर पाएगा अल्टीमेटली तो जब जाके मैंने देखा कि नहीं ये मैथ्स कर रहा है और ISI के बारे में मुझको क्लास 8 में शायद पता चला क्लास 7 में ना क्लास 7 में पता चला कि ISI नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जो IIT की दुनिया से बाहर है और इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लिया और फिर जाके कुछ सीनियर जो हैं उनसे बात किया कि नहीं ये तो एक अच्छा चीज़ है इसके तो फिर बच्चा भी जब उस टाइप का मैथ करना शुरू किया तो उसमें उसको इंटरेस्ट आ गया तो यही जाके अल्टीमेटली ISI में उसको कंटिन्यू करेगा तो जब इसमें जो वो कर रहा था तो अच्छा कर रहा था तो मैंने देखिए मुझको भी गार्जियन को मुझे लग रहा था कि अरे थोड़ा जॉइंट दे दो अच्छा एक रैंक ला लो जेई मेंस हाँ जो जेई मेंस में वो बोला कि नहीं पापा मुझको नहीं करना है उस साइड में अगर करूँगा तो केमिस्ट्री में ध्यान लगाऊंगा यहाँ ISI के लिए प्रिपरेशन तो बोला ठीक है अब कंफ्यूजन रहता है कि सेकंड चॉइस क्या रहेगा अगर नहीं हुआ तो बैकअप ऑप्शन तो हम लोगों ने क्या किया वेस्ट बंगाल जॉइंट उसको दिलवाया वेस्ट बंगाल जॉइंट जिसमें उसने 266 रैंक लाया तो हम लोगों का एक ही बैकअप रखे थे कि अगर नहीं होता है लेकिन शायद वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा लेकिन एक बैकअप रहना चाहिए ये लगा था लेकिन क्योंकि वो उस टाइप का मैथ में ही लगा रहता था सर भी जानते हैं आपके यहाँ पे पढ़ा है और मैं क्या बोलूँ
कितने दिन यहाँ का जो मतलब फैकल्टीज में जो हेल्प मिला है वो तो अलग ही है, वो तो बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उस टाइप का जो मैथ्स जब कर रहा था वही कंटिन्यू करता गया और उसी में वो आगे गया, तो मैं सोचा चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक ही है। ये आईआईटी से मतलब वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है। पर इसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपने बोला अब जब इसका इंटरेस्ट ये है तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, जो इंटरेस्ट जिस तरफ जा रहा है वही सही है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चा का इंटरेस्ट किस तरफ है उसको देख के अगर सही है तो, इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ में होता है, तो आपको भी थोड़ा गाइड करके देख लेना पड़ेगा कि किस तरफ पे इंटरेस्ट है। एक और चीज़ मैं शंकरदीप से पूछना चाहता हूँ। शंकरदीप, सिंस तुमने जेई का भी प्रिपरेशन किया था पैरेलली एंड 10th क्लास के बियॉन्ड, क्योंकि अर्नब का हिस्ट्री था कि अर्नब हैड स्टार्टेड वेरी अर्ली। तुमने 10th क्लास में ओलंपियाड्स मैथ से शुरू किया एंड 10th क्लास में बिल्कुल भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं किया। सो इट स्टार्टेड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टार्टेड इन 11th ओनली। तो जो ओलंपियाड्स का जो प्रिपरेशन था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमने सीखा था, वो किस तरीके से हेल्प किया? नंबर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर अगर किया, एंड सेकेंडली देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन जेई मैथ्स जो ओलंपियाड्स में नहीं करते हो। कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर 3D अलजेब्रा हो गया। इसके अंदर कुछ हेल्प हुआ ओलंपियाड का प्रिपरेशन? From my Olympiad preparation, I developed problem solving skills, and when I after that when I tried to solve the JEE assignments, it was really easy. Like the problem solving skills requirement part was not that difficult. Mainly in maths mainly the problem solving skill that we develop from Olympiads is really useful. In JEE, the only thing that we extra required to do is just the theory part, just the lot of extra syllabus that we need to cover. But after that, the problem solving skills are almost done after Olympiads. And as I said earlier, the problem solving skill requirement in Olympiads is much higher than in IITs. So that really helped me because I had done a lot of Olympiads, and also that helped me in physics too, because in physics, in the mechanics part, and there are also a lot of numerical sections in physics in which it is kind of an applied math. So in that portion also, maths, the problem solving skills that I earned helped me a lot. तो अगर तुम ओलंपियाड के लेवल पे प्रिपेयर करते हो, अगर तुम अपने टारगेट को बहुत हाई रखते हो, तो तुम लाइफ में अपने ब्रेन को इक्विप कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एंड यू विल डू अमेजिंग एनीवेयर यू गो इन लाइफ। ऐसे बच्चे को बड़ा करना इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, इज़ नॉट जस्ट एनी नॉर्मल चाइल्ड। एक क्लियर पैशन था एक डायरेक्शन के अंदर, तो आपने कैसे उसको नर्चर किया, और साथ ही साथ आप एज अ फैमिली आपने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे, तो वो भी मैं समझना चाहूँगा। मम्मी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पिताजी का रोल एक होता है, मतलब मनी और मॉम, ये दोनों चीज़, और सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चे को टाइम देना। आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं शाम के टाइम में, फिर आके आप 3 घंटे कहीं पे एक पार्टी करके आए और 8 बजे आके बोले बच्चा बैठ जाओ पढ़ने में, और मैं मोबाइल लेके बैठ गया, तो ये कभी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए। तो आपको उस चीज़ को भी करना है, किसी की जगह पर जाना है तो अल्टरनेटिव हिसाब से जाना, जो हम लोग, मेरी वाइफ ने जो किया है, किसी जगह पे जाना ही पड़ता है, नहीं तो आपको, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव हिसाब से बच्चे को टाइम दो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और उसको क्या चाहिए उसका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते रहना चाहिए। मतलब रिक्वायरमेंट मतलब जो भी अच्छी चीज़ है, तो इस हिसाब से अगर आगे बढ़े तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको करना ही है। अमेजिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, भवेश सर भी यहाँ पे हैं, कि वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, एंड यू नो वेदांतु ओलंपियाड स्कूल हैज़ क्रिएटेड सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव गॉट लॉरेल्स फॉर इंडिया एज वेल। तो तुम बच्चों से मैं समझना चाहूँगा कि वेदांतु का क्या रोल रहा तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर, यू नो हाउ डिड अभय सर एंड टीम एंड द कंटेंट हेल्प यू शेप अप इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स, तो वो थोड़ा बताओ उसके बारे में। और ऑनलाइन पढ़े तुम, राइट? दोनों के दोनों बताओ। At first, I got to know about Olympiads from Vedantu's YouTube channel only, and I could not actually, when I was starting my Olympiad preparation, when I was trying to attempt the IOQM previous year papers, that actually looked really hard. Like I could not find a starting point, and from then I actually
saw the YouTube videos of VOS, and they actually really helped to strengthen my basics. It is actually really about clearing the basics. Like when we get a strong hold on the basics, then we can actually develop ourselves. And in developing that basics part, Vedanta has helped me a lot. Like after that, you become self-dependent after you have strengthened your basics. Like, So after joining your camp, you were in level 8 and level 9 RMO and INMO batch basically for the 2 years. तो चेतन सर का क्या contribution रहा तुम्हारे? हाँ सर, मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे. मतलब क्लास में मतलब वो खुद के बहुत सारे पजल्स भी देते थे. मतलब दूसरे बच्चे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको देखकर भी मतलब जो उसको देखकर भी मोटिवेशन आता था कि वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. IOKM के लिए वेदांतु मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर लिया. वो मतलब 8th और 9th में जब IOKM देता था तो बहुत मतलब कैलकुलेशंस उतना अच्छे से नहीं होता, उतना फास्ट नहीं होता था. तो IOKM के मतलब अभय सर के वीडियोज़ ही में पहले देखता था. तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा यहाँ पर IOKM के लिए तैयारी किया जाता है. तो IOKM का मॉक टेस्ट देना चालू किया. तो IOKM के कुछ 2-2.5 महीने पहले से दिया रफली 10 to 15 मॉक्स. और वो मतलब मेरा मार्क्स लाइक 20s और 30s से लेकर 50s 60s तक बूस्ट कर लिया. तो वो ओरिजिनल एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा चीज़ था. मतलब हो गया वो मतलब IOKM अब हो गया, अब मत पूछो. अब इनमो हो गया. तो हाँ, और ये ISI के लिए भी मतलब लास्ट कुछ महीने रजित सर यस, वो तो मुझे- लास्ट में रजित सर ने 5 बच्चे पकड़े होते जिनको हमें पता था कि दे आर गोइंग टू सिक्योर गुड रैंक्स. उन 5 बच्चों में रैंक 1, रैंक 13, रैंक 4, रैंक 2 एंड 1 गॉट रैंक 65. ये 5 बच्चे हमें पहले से प्रेडिक्टेड थे कि दे आर गोइंग टू रियली डू वेल. तो हम उनको बहुत ही अच्छे पॉलिश करने वाले थे. एंड रजित सर इज़ मतलब वो ISI कोलकाता पास आउट ही हैं. एंड उन्होंने बहुत लास्ट के अंदर इनके ऊपर मेहनत की है. एंड अल्टीमेटली आई मीन Amazing, yeah. Rajit sir helped me a lot through that. Like he also helped me in some parts for JEE mains. Like like I was always too bad in MCQs. So he said me some strategies that like boosted my marks. The best thing I liked about it was that like don't hold your ego on some problem. Like if you hold hold an ego for a problem, then like you just leave out some easy problems maybe. Time management. Yeah, the time management policy, everything. Like he helped me a lot. And I also like to point out about the peer group. यस. So I would like to thank Shaunak Kaur Yes. for this. Like he used to give me one problem of the day at exactly 12 of midnight. ओके, कि वो करके सोना है. हाँ मतलब वो दे देता था और वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था. Yeah. मतलब वो कभी भी रिपीटेड नहीं होता था. और वो करके बहुत मजा आता था. तो शौनक सर इज अनदर ऑफ आवर स्टूडेंट जो उसका रैंक 4 आया है. तो ही कुड नॉट बी हेयर बिकॉज उसका टांग में प्रॉब्लम था. तो ही हैज़ वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट मार्क्स इन IOKM फॉर द पास्ट 2 years. लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर भी इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था IOKM में. एंड दिस ईयर ऑल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू क्लियर इनमो. उसका 1 नंबर से रह गया, 67 था. यहाँ अगर अर्नब के मार्क्स कम हो जाते तो उसका इनमो हो जाता. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, बट इट्स अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन. मतलब मैं ये इस माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेलस फील करते हैं एंड दे डू नॉट टाइम टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दी अदर्स कि हमारा कॉम्पिटिशन में है तो हम क्यों शेयर करें. बट अगर शेयर करोगे एंड अच्छी तरीके से शेयर करोगे, इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प एंड बेनिफिट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. अच्छा, एक चीज़ बताओ, अब तुम लोग इतने स्पेसिफिक मैथ के जोन में हो, तो मुझे अब वो बच्चे जो कि स्पेशली अभी 7th 8th के जोन में है, जो कि इसको देख रहे होंगे, तो उनको उनके लिए तुम्हारा क्या सजेशन है, क्या गाइडेंस तुम उनको देना चाहोगे
हाउ शुड दे बी प्रिपेयरिंग एंड हाउ शुड दे बी आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स कि हाँ मेरे लिए डायरेक्शन सही है, मैं मैथ में डीप जा सकता हूँ, ऐसे क्या ट्रिगर्स होंगे उनके लिए? In Olympiads, mainly one thing that students face is that when we start Olympiad preparation, we actually face a lot of demotivation. Like we could not solve a problem, we take a lot of time, but we still could not solve it. Like in that time, it's really needed to give a lot of time to those problems, to spend a lot of time. And another thing is when we could not solve a problem, we should spend a lot of time, then see the solution. But seeing the solution, we should not feel demotivated. Like we should appreciate the ideas of the problems, because when you appreciate something, that will actually be stored into your mind for a lot of time. Like after some time, like in my initial stages, I actually faced a lot of difficulties, but I had the passion. Like, and keeping the passion is also important. Like if you like it, then you will definitely be able to do it. And while I was doing Math Olympiad, like demotivation do occur, but after a certain point of time, I actually got habituated in those. And when we get habituated, then we start thinking by ourselves. Like we become self-dependent. We have a lot of self-control and things like that. सो एनी जो भी बच्चा देख रहे हैं यहाँ पे 8 9 में है, 10th में है, 11th में है, तुमने काफ़ी लेट शुरू किया था प्रिपरेशन, शौनक अर्नब ने काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था. सो व्हाट इज़ हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वेदांतो एंड वेदांतो ओलंपियाड स्कूल के लिए कोई रिकमेंडेशन किसी बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो किस तरीके से ज्वाइन करे, क्या माइंडसेट लेके ज्वाइन करे ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन? Like if you have passion for maths, if you really want to be a mathematician, or if you are just like doing problem solving, you should start Olympiad preparation. In class 7th or 8, we should not think about like after class 12 which college should I choose. We should not think about that, because the college thing is really different from whatever you study till class 12. So in that time, because IMO, like the Olympiads, provide a very good pathway to choose our dreams. So everyone should start Olympiads, like should do Olympiad problems, see whichever field you are getting interested in, like do that. Like Olympiads always take to the highest level that you can reach in the undergraduate level. Yes. और हाउ शुड दे ज्वाइन वेदांतु? आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वो तो फॉलो करना शुरू ही कर दें, सो दैट दे गेट टू नो कि व्हाट द प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल इज एंड वेयर डू दे फाइंड देमसेल्व्स, राइट? सो तुम्हारा क्या सजेशन है कि हाउ कैन वेदांतु हेल्प इन दिस जर्नी एंड व्हेन शुड दे स्टार्ट गेटिंग अलोंग विद वेदांतु इन दिस जर्नी? Vedantu, like when we just start Olympiad preparation, like like all the playlists that are made on YouTube actually provides a very good platform to start. Like it actually develops all the basics that we require for Olympiads, like the few topics in number theory, few topics in geometry, few clever problem solving techniques. Like those provide a very good starting platform. And in this aspect, Vedantu has really helped me a lot. So like everyone should start with the YouTube videos, like, and after that like I think for clearing IOQM, Vedantu's YouTube videos are sufficient. So what like, and another thing, after like seeing YouTube videos clear IOQM, then get the RMO and INMO batches for free, join them. Your last message for all the students who are aspiring to be where you are, जहाँ तुम आज बैठे हो वहाँ बच्चे जो बैठना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? मतलब शंकरदीप, अर्णब और सर आपका. In whichever field you get motivation, do that. Like I liked maths, so for maths Olympiad is the key. Like it will provide you all the basis. I should say go get a guru. Go get a Guru. guru. Okay. Get a mentor. Guru. Yeah, exactly. Amazing. Like I am very lucky that I got one as early as in class 7th. That is the like prime key to getting where I am today, maybe. Amazing. So again, like go get a mentor. Amazing.
So बच्चों, I mean it was an amazing, inspiring talk with these very inspired, passionate students जिनने इतनी मेहनत के साथ, कई sacrifices के साथ अपने ड्रीम को अपने दिमाग में अलाइव रखते हुए वहाँ जहाँ ये पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे। तो बच्चों, तुम सब भी कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है और तुम्हें अपने गोल को आंखों के सामने रख के साथ के बस लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। हम हैं तुम्हारे साथ to support you in this journey, to guide you, to mentor you in this journey. Wish you all the very best and lots of best wishes to these amazing students. All the best, बच्चों. All the very best.